नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अपने आप को एग्जाम से पहले एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए और उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। वाटर हेल्प इन डैश ऑफ फूड इन एनिमल डाइजेशन। Animals living in water are called aquatic animals. Animals which can live both in water and on land are called amphibious animals. Water trapped between underground rock is called groundwater. Dash and dash are aquatic plant, lotus and hydrilla. True false करना है यहाँ। Water is required for germination of seed. True. Groundwater can be drawn up by a hand pump. True. About 50% of water is present in seas and ocean. False, क्योंकि 50% नहीं है, seas और ocean में 97% है। Octopus is an amphibious animal. False, ये कौन सा animal है? Aquatic animal. River water is purified for drinking purpose. True. About 90% of water is present in seas and ocean. Plant absorb water from the soil with the help of root. Arehat is used for drawing out groundwater for irrigation. रेहत क्या होता है? Water wheel होता है। An example of an amphibious animal, frog. Fish क्या है? Aquatic animal. Hydrilla क्या है? Aquatic plant. Duckweed क्या है? Aquatic plant. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। Answer the following question in brief. Name any two water bodies that exist on the surface of the earth. Two water bodies कौन कौन से हो गए? हमें दो ही वाटर बॉडीज का नाम लिखना है, लेकिन यहाँ मैंने आपको नोट्स के रूप में ज्यादा बताया है। आप सबको याद रखिए, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा दो तो दो ही लिखना है, लेकिन अगर 3-4 पूछे तो आप सारा याद रहेगा तो सारा ही लिख सकते हैं। सीज एंड ओशियन, रिवर एंड रिवर्स, पॉन्ड, लेक। इसको दो अलग अलग पार्ट में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि 100% वाटर दो भागों में बटा हुआ है। सॉल्टी वाटर 97% है अर्थ पर और 3% जो कि ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश वाटर हो सकता है वो रिवर, पॉन्ड और लेक में अवेलेबल है। वाटर एनिमल लिविंग इन वाटर नोन एज। What are water animal living in water known as? Write name of two such animal. Animal living in water known as aquatic animal. वैसे एनिमल जो कि पानी में रहते हैं उनको aquatic animal कहते हैं। वे कौन कौन से हैं? फिश और व्हेल है। What are amphibious animal? Animal which can live in water on land both. वैसा एनिमल जो कि वाटर और लैंड दोनों पे रह सकता है उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियस एनिमल कहते हैं। Write names of 4 aquatic plants. Name of 4 aquatic plants are lotus, water hyacinth, duckweed, water lettuce, hydrilla. 4 aquatic plants ये हो गए। How do plants absorb water? Plant absorb water from the soil with the help of their root. रूट की मदद से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। Write names of 4 aquatic plants. Name of 4 aquatic plants are lotus, water hyacinth, duckweed, water lettuce, hydrilla. How do plants absorb water from the soil? Plant absorb water
from the soil with the help of their roots. State two common method of drawing out groundwater. टू कॉमन मेथड लिखना है, लेकिन मैंने जितने भी आपके बुक में दिए गए हैं सबको लिखा है। आप सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको छोटे छोटे क्वेश्चन में भी बांट के पूछ सकता है, इसलिए सबको जानना जरूरी है। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है। अगर वो 2 पूछ रहा है तो 2 ही लिखना है, 4 पूछेगा 4 लिखना है। जितने नंबर हैं नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए। टू कॉमन मेथड क्या क्या है? बाउलीज और स्टेपवेल। ये सब क्या है? ग्राउंड वाटर को कैसे निकाला जा सके उसका तरीका। बाउलीज और स्टेपवेल, वाटर व्हील्स और रेहत, फ्रॉम अ वेल और ट्यूबवेल, इन सब तरीकों से ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। A step well is a well having a step on all sides. This enables people to go down to fetch water. Step well क्या हो गया? Step well हो गया जिसके चारों तरफ स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं, ताकि वो नीचे जाकर पानी को ला सकें। Water wheel or a rehat. Ground water can also be drawn out and used for irrigation with the help of water wheel or a rehat. From a well, ground water can be drawn out of the water can be drawn out with the help of pulley. पुली की मदद से उसको खींच के पानी को निकाला जा सकता है वेल में। ट्यूबवेल क्या होता है? ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो ड्रॉन आउट यूजिंग ट्यूबवेल की मदद से भी ग्राउंड वाटर को निकाला जा सकता है। इन अ ट्यूबवेल अ लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड वेयर इट डीप्स बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल। एक लंबे से पाइप को अंदर भेजा जाता है जो कि कहाँ तक जाता है? ग्राउंड वाटर के लेवल तक जाता है और वहां से पानी को खींच के लाता है। Beside its domestic use, state 3 other uses of water. डोमेस्टिक यूज, वाटर के घरेलू यूज के अलावा और क्या क्या यूज हो सकता है बताइए। इरिगेशन। Beside the domestic use, 3 other uses of water are इरिगेशन ऑफ फील्ड, सिंचाई, खेतों की सिंचाई, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि पानी से जनरेट किया जाता है, वो भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो सीप हो गया, बोट्स हो गए, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, वो भी कैसा होता है? पानी में से यूज होता है। सीड जर्मिनेशन भी कैसे करते हैं हम लोग? पानी में सोक करके सीड को जर्मिनेट किया जा सकता है। तो क्या क्या यूज है उसका? इरिगेशन ऑफ फील्ड, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सीड जर्मिनेशन। How does water help in excretion of waste material from animal bodies? Waste material of animal bodies get dissolved in water and excrete in the form of urine. Waste जो है बॉडी का वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में और एक्सक्रेट हो जाता है यूरिन के फॉर्म में। List any 4 ways in which water is important for plant. 4 ways in which water is important for plant are following. For absorption of nutrients, nutrients get dissolved in water present in the soil. Plant absorb water from the soil and with the help of their root, this absorbed water transport them to various parts of the plant. क्या बोल रहा है
कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल में, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स पानी में डिसॉल्व होकर ही रूट के थ्रू पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाता है। कैसे? पानी है, पानी में जो मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है पानी में घुल गया और वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट में चला गया। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए, सीड से पौधा को तैयार होने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। प्लांट नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो केमिकल प्रोसेस होता है उसमें वाटर भी जरूरी होता है। वो इसलिए फोटोसिंथेसिस तब नहीं हो पाएगा अगर वाटर नहीं होगा। What is a habitat for many plant? Water is a habitat for many plant. प्लांट के लिए बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, जिसका घर होता है वाटर। How can groundwater be drawn out through tube well? In a tube well, a long pipe is inserted deep into the ground where it dips below the ground water level. Water is then drawn up by using a hand pump or a electric pump. ट्यूबवेल में एक लंबा सा पाइप को नीचे तक ग्राउंड वाटर के लेवल तक उसको भेजा जाता है और उस पाइप के थ्रू या तो हैंड पंप या इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू पानी को बाहर निकाला जाता है, ग्राउंड वाटर को। What is a step well? A step well is a well having steps on all sides. This enables people to go down to fetch water. Step well क्या करता है? स्टेप वेल के चारों तरफ कई सारे जो हैं स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, ताकि लोग नीचे तक जाकर पानी लेकर बाहर आ सके। हाउ इज वाटर सप्लाइड इन सिटीज? वाटर सप्लाइड इन सिटीज। Here the river water is usually purified by a series of processes that make it fit for drinking. Then this purified water is then sent to homes and offices through a network of pump and pipes. जो शहरों में रिवर का पानी को बहुत सारे प्रोसेस से प्यूरिफाई किया जाता है और इस लेवल तक प्यूरिफाई किया जाता है कि उसको पीने लायक बना दिया जाए। फिर उसको भेजा जाता है घरों में, ऑफिसेस में, पंप के थ्रू और पाइप के नेटवर्क के थ्रू। हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। धन्यवाद।